Welcome to Arc English. And in my last class, I was telling about conditional sentences. So we have been informed that what is a conditional clause. So what is a conditional clause? Conditional clause, meaning thereby conditional sentence, is the kind of sentence where we have two clauses. One is an if clause, which is considered to be the adverbial clause, time adverb clause, and another is the main clause. And when the main clause is depending upon some adverb clause for an event to happen or not to happen, we call it a conditional sentence. Later we have been informed that there are open conditions and closed conditions. And in the category of open conditional clause, there are general condition which automatically happens something, and another is a likely condition, meaning thereby an assumption which is likely to happen either in the present or in the future, near future. And in the closed condition, I have told you that when the relationship between the adverb clause or if clause and main clause is cut off, it is considered to be an imaginary condition or unlikely condition. So what is the definition of an unlikely condition? I have told you that it is a supposition, meaning thereby it is mostly unlikely. Either it is a case of probability or impossibility. And it is a supposition that has not happened till now. And the last one is the unfulfilled condition. It is a supposition that did not happen in the past. So these are the four elements of conditional clauses pertaining to if clause. And we have also learned that what is the construction of these elements, this general condition, how each the sentences are constructed in general condition, in likely condition, in unlikely condition, and in unfulfilled condition. So we will just go in detail of them. First of all, number one, what should we understand to this day? First of all, we must see the construction part, or say the structural part. And in this, we will have to go a bit higher. Till matriculation, we have been structural, but today we shall have to go a step ahead. That is the tense and time elemental difference. Understand? So let us come. So you see, general condition. In general condition, I should have in detail of them. So if clause plus subject plus verb 1 plus object plus other words, subject plus verb 1 plus other words, right? So this is the structural part. Right? So if you heat water, or you can also write if water boils, it evaporates. Last day I was telling you this, and
I have also underlined these two present simple verbs. You see, the tense is present simple, whereas the time is, there is no definite time. Why? Because whenever water is heated, it evaporates. You see, if the meaning of if is when, but you see, when is factual, fact oriented, and if is assumed. What naturally happens, we can only assume that. And the things will happen when the if clause is the action of the if clause is fulfilled, then the main clause appears to be happened. So number 2 is that likely condition. And this is not much importance. This is not much important, right? So likely condition, the assumption that is likely to happen. ध्यान दियो पहले, if you remember this, you can click quickly, right? You see, likely condition, assume, that is likely. Assume means you think of something that is likely to happen, meaning there are very practical things that we think. We can think in two ways. One is a factual, another is an unlikely thing. Right. So you see, I have only given one example because I will have to go further. In my last class, I have already done much of them. Today's class is meant the difference between the clauses. This is my priority. I want to clear that. So you see, in likely condition, we can take an example. You see, if you post the letter today, it will reach tomorrow. You see, if you post the letter today, it will reach tomorrow. Likely condition. Our if condition, it is simple present, and the main condition, main clause takes future simple. Will reach. You see that it will reach tomorrow. Okay. So tomorrow is a adverb of time, future adverb of time. That's why even though the if clause speaks of a present simple verb, its time is future simple. Right? You see, if it rains, we shall not, we will stay at home. I want to show the difference, how time adverb has dominancy over the verb. In my last class, I was telling you that the same tense is not applied to the same time. Present simple doesn't speak of present time. And the second element, I have told you that always the adverb of time controls monoverse the tense aspect. I am going to prove it now. You see, if you post the letter today, it will reach tomorrow. चिठीटा आजी पकई देले तांकु काली मिली जिवो तला तो एठी फ्यूचर टाइम हला सेकंड सेंटेंस को मार्क कर पले देयर इज नो एडवर्ब ऑफ टाइम अछि की इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम यू सी वी विल स्टे इफ इट रेन्स मीनिंग देयर बाय इट इज लाइकली टू रेन नाउ it is
your thinking process goes like this, it is likely to rain now, so we shall state at home. टाइम देख पिले सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइम भी तार प्रेजेंट ध्यान दियो सेम जिनस से विल शैल स्टे इज हियर विल स्टे इज हियर विल रीच इज हियर you see this is monoed by the future adverb of time, whereas there is no future adverb of time here. This is the basic difference. I just want to focus on your mind. You see, it is likely to rain का मतलब है if it rains, to be short we can construct this line. If it rains we will stay at home. It's like meaning thereby it is likely to rain now, so we shall stay at home. वर्षा हम रही जा चल यार अर्थ पे ये जो टाइम टा कौन है इट इज प्रेजेंट टाइम तमाने एबे वर्षा हम टिके रही जा यू सी इवन द विल शैल फ्यूचर टाइम इज यूज्ड स्टिल इट इज रेफर्ड टू प्रेजेंट टाइम मु कहिथिन ना इट रेफर्स आइदर टू प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम सिंपल नियर फ्यूचर टाइम राइट नेक्स्ट आसो पिले दिस इज यूज्ड frequently in our communication. You see, now we will come to closed. This is open condition. We will come to the closed condition part. Closed condition रे कौन से पिले unlikely condition and unfulfilled condition. हमें तो closed condition काहे कहूचे because the relationship between the if clause and the main clause is closed. Why? Because the if clause part is totally an imaginary condition. Either it may be improbable, a case of improbability or a case of impossibility, right? So let us go for that. एटी कौन है बिले if clause रहिला ये तमरा unlikely. देख पे आउ टे हायर ग्रामर को जो तुम +2 स्टैंडर्ड रो कहूँ तुम जब आउ टे हायर स्टैंडर्ड को जो ये जो लाइकली कंडीशन हम कहना ना इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम और आ गोटे एग्जांपल टा कौन कहले इफ यू पोस्ट द लेटर टुडे इट विल रीच हिम टुमारो देख पे ये जो इफ क्लॉज रही आम या दीटा टेंस एस्पेक्ट रे कन्वर्ट कर पारिया देखो if you post the letter, if you are posting the letter today, meaning thereby when you are focusing an activity of a person you use present continuous, it is higher English. मु से लेवल को तुमको नबाऊ चाहनी बा तुमको कंफ्यूजन दबाऊ चाहनी किंतु तुम आगु को जाइए जदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दब you must know them all. So you see, if you are posting, when you are focusing an activity you use प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब टेंस पढ़ेबी से पदुटे कहबी आर विषय आ गोटे जिनस पले इफ यू हैव पोस्टेड द लेटर टुडे इट विल रीच हिम टुमारो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट भी व्यवहार होछि किंतु आमे ताकू कट शॉर्ट सहज करिया पई आमे ताकू सिंपल प्रेजेंट रे यूज करते राइट केवल इफ क्लॉज रे केवल ये चारटा जिनस सिंपल प्रेजेंट रे खाली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट परफेक्ट यूज होनी एडवर्बियल क्लॉज रे अन्य क्रिया गुडा भी यूज होची किंतु हमें ठीक ठीक जानिया दरकार वेयर शुड यू अप्लाई एंड द मीनिंग्स विल बी डेफिनेटली डिफरेंट दे आर ओनली सिनोनिम दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम आमे जदी कहबा इफ यू पोस्ट द लेटर टुडे and if you are posting the letter today and you have posted the if you have posted the letter today it will reach what देखो पहले तीनटा कर मीनिंग सिनोनिम किंतु दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम राइट छाड़ मुझसे कंफ्यूजन भीतर तुम न एठी आस अनलाइकली कंडीशन मींस देखो पहले इट इज अ सपोजिशन सेटा कोन पहले एज्यूमशन थिला दिस इज सपोजिशन सुपोजिशन माने जहाँ काल्पनिक जहाँ कल्पना करा जाई पारे मु तुमको ओडिया रे कहि दोछ पिले आमे दुई प्रकार चिंताधारा करूछ आनी पारुछ नंबर 1 गोटे चिंताधारा होची जे आमे जोटा घटिया को जाउछे बा हमरो जो अनुमान रहिछ
आसम्पशन कौचे ना अनुमान जहाँ सत्य हुए बाबा 5टा बेले ऑफिस आसती हे बाबा आसुवे आप बसतु आम कौचे मैंने कौन तमाने बाबा आसुवे यहाँ अनुमान है आउ गोटे जिनस पे कौन काल्पनिक पूरा पूरी जहाँकि वर्तमान रे घटबार ना ए सपोजिशन दैट हैज नॉट हैपेंड नाउ वर्तमान रे घटबार ना किंतु भी आम कौचे मो पाखे 500 टंका थिले तुमको दियंती किंतु 5 टंका मो पाखे ना मुझे केबे एमती कहती मु प्रकृत में तमें नुह तो दीज आर ऑल द केसेस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मुझे अधिक परिश्रम करथिले फर्स्ट क्लास टे पांती किंतु मु परिश्रम करूना दीज आर मुझे ओडिया कहीदे पे तुमको गोटे बेटर मुझे बुझेबी इंग्लीश रे किंतु ओडिया कहले तुम टे बुझी पार है तो इसे तो अनलाइकली कंडीशन सपोजिशन रहा ए सपोजिशन दैट has not happened now हला पे now माने by the time of speaking अच्छा एटी कौन हला पे if clause subject plus v2 ध्यान दियो पे ये जिनसरा v2 कहीं कहूची ना verb past ध्यान दियो पे past plural normally छोट छोट ग्रामर बही डील करते किंतु भल ग्रामर बही डील पास्ट प्लूराल इज यूज फॉर एन इमेजिनरी कंडीशन आम देखिए पे पास्ट आम 3टा देखुचे ना स्टेट पास्ट देखुचे हैबिचुअल पास्ट देखुचे एंड स्टेट पास्ट हैबिचुअल पास्ट देखुचे आउ गोटे रहा तुम पे तुम कंडीशनल पास्ट यहाँ सब देखुचे किंतु देख पे ये गोटे रहा आउ गोटे जिनस भी अच्छी पास्ट प्लूराल इज यूज्ड to express an imaginary condition मैं तुमको एग्जांपल टे कहूची पे एग्जांपल रो ही आमे नीति आनी परिया बुझी परिया देखो पे इफ आई वेर यू आई वाज यू माने मु प्रकृति रे तमे किंतु नो एठी व्यवहार हे पानी इफ आई वेर यू एटा काल्पनिक जिंस मु तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल टे कहूची आई सॉ यू फ्रॉम ए डिस्टेंस आई थॉट इट वाज यू जेतले मु आई थॉट इट वाज यू मोर भावना को सकारात्मक नेली एवं कहले आई थॉट इट वाज यू एवं प्रकृत रे तमे ही थिला एंड इन फैक्ट इट वाज यू किंतु मैं जब कहली आई थॉट इट वेर यू मु तुमको बहुत दूर देखिली मु भाबिली तमे हेइथियो परा सेतले आमे कोन भाबिले आई थॉट इट देख बोले जो टाइप रो चिंताधारा आसे सही टाइप रो शब्द आमे उच्चारण करछे दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से यू that please repeat the grammar once and again so that it will be natural in your mind you will not have to remember something and use this it must be natural तो मैं कहली that I saw you from a distance I thought it were you meaning thereby it was not you it was your brother right तो ये जिनस रहा पास्ट प्लूरल इज यूज्ड फॉर एन इमेजिनरी कंडीशन प्लस आम अदर वर्ड्स दे देबा तापर आसे पिले कंडीशनल रे रहला मेन क्लॉज रे सब्जेक्ट रहला या पर कोन रहला पिले कंडीशनल प्रेजेंट वुड शुड कुड माइट प्लस भी हला प्लस अदर वर्ड्स भी माने बेयर वर्ब प्लस भी कर दो पिले कहीं तुम जाच मुझे कैटेगोरिकली लिखा पड़ुचे कहीं बहुत बही रे खाली भर्ब लिखि दौरान एक्चुअली इट इज नॉट ए भर्ब नॉन फिनाइट पर सब बेयर भर्ब आसो ये सब नॉन फिनाइट्स मॉडल्स आर ऑल नॉन फिनाइट्स आ वुड शुड कुड माइट प्लस भी बेयर भर्ब यूज होला माने एटा कंडीशनल प्रेजेंट बोली आसला कंडीशनल प्रेजेंट कंडीशनल पास्ट कंस्ट्रक्शन जेम तमे टेंस रे कहउछ ना एटा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जेमति कहउछ सेमति एटा को कंडीशनल प्रेजेंट बोली कहआ जाय वुड प्लस बेयर वर्ब अच्छा कंडीशनल पास्ट बा परफेक्ट कंडीशनल का कहआ जिवो वुड हैव शुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस v3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी होचे परफेक्ट कंडीशनल एटा फॉर्मेट को तुम मन रखिया पड़ियो राइट तो देखो बेयर वर्ब गला तापर आमे अदर वर्ड्स दे दोची ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स छाड़ हला तो एई जो जिंस रहला गेले आमे मोस्टली एई दुटा यूज करू तो एबिलिटी एक्सप्रेस करिया थिले कुड यूज करछे ना शुड आमे बहुत कम समय यूज करछे एवं माइट जेतले व्यवहार करछे पिले ये होची अनरियल कंडीशन देखो पिले
जो माइट व्यवहार करछे मु तुम कहि दूछ बिले बहुत कम केस रे यूज हुए। देखो ये तो इमेजिनरी, ये इमेजिनरी माइट जोटी व्यवहार हो जेटा अनरियल कंडीशन। मु तो गोटे एग्जांपल दे दोछि। इफ मु प्रूव करबी, इफ आई न्यू his address, I might tell you। है ना पिले, I might tell you। देखो if I knew कौन रखले पास्ट प्लूरल बा पास्ट फॉर्म रखा है। if I knew his address रो माने होची I do not know his address। है ना पिले, I might tell you। might देखो फॉर अनरियल का, जदि मु टोटली जानी नाही ताले हाउ कैन आई से दिस। तो आई कुड टेल यू, आई शुड टेल यू, आई वुड टेल यू कहया दरकार नहीं। वुड एक्सप्रेसेस 50% ऑफ योर ओपिनियन, 50-50 जदि हला वुड रहला, राइट। तो कुड हेले when there is least possibility you use could, right। should when there is appropriateness of something to say, should। might is used when there is lesser possibility of something to happen। तो मॉडल पढ़े बोले पूरा विस्तृत भाव पढ़ेबे, यू नीड नॉट वरी फॉर दैट। तो देखो इफ आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, देखो एई जिंसटा आमे सबले कोन करछे ना अनलाइकली कंडीशन रे सबले एई जिंसरा को हमर प्रायोरिटी रहछि हला। तो एठी हमर रहला आई माइट टेल यू, दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ माइट। अच्छा बर्तन चलो मो बर्तन सेंटेंस को जाउछि। एई जिंसरा को आमे भलो के बुझिया दरकार, आमर कौन मिसफिट हेची एवं आमे कौन शिखुचे। देख बोले इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट से, मु हेइथिले कहंतिनी। एपरी कहंतिनी। देख बोले कही न थांती सारे माने मैट्रिक लेवल रे हैला। इफ आई वेर यू और इफ आई हैड मनी आई वुड मेक ए हॉस्पिटल हैला फॉर द पुअर। माने मु जदी मो पाखरे लॉटरी फुटिथिले बा मो पाखरे टंका थिले मु हॉस्पिटल टे करि थांती बोली साधारणतः कहि दोचन पिले। आमे कोन 7th 8th क्लास रा मु सार माने मिसफिट कले, तो मु कहि परिबेनी से माने केते बाट जानी थिले एवं से माने काहे के एमिति कहिथिले। फैक्ट होची जहा फैक्ट जोटा ट्रुथ सेटा ट्रुथ। तो आमे एठी कोन करिया इफ आई वेर यू, इफ रो अर्थ नुह जदी, इफ रो अर्थ सोळे व्हेन, इट इज अ टाइम एडवर्ब। इफ आई वेर यू मु हेइथिले, मु जदी तमे हेइथांतो एटा भी न मु हेइथिले आई वुड नॉट से, मु एपरि कहंती। इफ आई वेर यू आई वुड नॉट से दैट लिख पारे। आई वुड नॉट से हमें कम्युनिकेटिव रे बहुत बड़े कंजक्शन गुडा हमें काटुचे हैला। आई वुड से हैला हैला। बर्तमान देख पिले आ गोटे कथा कहूची इफ आ गोटे जिंस इंपोर्टेंट जिंस आज पिले काली बतई देछि, आज केवल इंपोर्टेंट जिंस मु डील करछि। ध्यान दियो इफ आई वर्कड हार्डर I would or could get a promotion soon। ध्यान दियो पिले if I worked harder past plural यूज कली प्लस एटा कंपैरेटिव डिग्री को हैला, कंपैरेटिव डिग्री को आनली। तापर लिखले आई वुड और कुड जोटा हले भी चलिबो हैला। आई कुड गेट ए प्रमोशन सून। देखो पहले जो सून लगैली ए सून होची फ्यूचर एडवर्ब हैला। हमें यूज करले कोन पहले टेंस होची पास्ट यूज करले, एटा पास्ट टेंस यूज करले फॉर फ्यूचर टाइम। जदि सून न थांदा ताले प्रेजेंट हेतांदा, जदि सून न थांदा ताले प्रेजेंट टाइम हेतांदा।
सुन जेहेतु फ्यूचर टाइम रहा तेणु आम फ्यूचर टाइम बोली कहे देखो पास्ट मुझे कहती ना द सेम टेंस इज नॉट यूज्ड फॉर द सेम टाइम टेंस रे मु तुमको 15टा एग्जांपल एमती देवी I could show you why 15,000 examples I could show you किंतु 15टा विभिन्न वेराइटी देले तुम बुझी पारियो दैट मु जोड़िए जिंस ऊपर प्रायोरिटी देले टेंस पढ़ेला रे मु जोड़िए जिंस ऊपर प्रायोरिटी दे से जिंसरा पिले देखो जे द सेम टेंस इज नॉट यूज्ड फॉर द सेम टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑलवेज कंट्रोल्स ओवर द मेन वर्ब को सबले से कंट्रोल कले टाइम एडवर्ब राइट अच्छा गला ये वुड कुड पहले कौन है पिले ये जो जिनसरा कहले ना वुड शुड कुड माइट प्लस बेयर वर्ब आई कुड गेट हला बेयर वर्ब देली अच्छा पिले बर्तमान मु एठी संगे संगे तुमको डिफरेंस आनुची धरा जाऊ गोटे क्वेश्चन देला वो तो टिके वाइप आउट करूची तो धरा जाऊ गोटे क्वेश्चन देला पिले तमे केमिति जानिबो एबे चलो ये तो छाड़ कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस रे ऑटोमेटिक हो जिवो किंतु हम सेति पई जिया पई किछि परीक्षा भी बसवर्ती हेबा को पड़ियो तो कौन देख पिले तो इफ आई वर्क हार्ड आई गेट प्रमोशन सुन भी दे थाओ न दे थाओ हला अच्छा देख पिले ये जदि रहिला तमे एटा कोन लाइकली करिवो ना अनलाइकली करिवो तो डेफिनेटली तमे लाइकली कंडीशन करिवो काहे ना एठी कंपैरेटिव नाही इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट ए प्रमोशन ए रही ए छाड़ दीजिए ए प्रमोशन आई विल गेट ए प्रमोशन सुन हला मो परिश्रम कले प्रमोशन टे शीघ्र पाइबी ध्यान दियो पिले बहुत पिला ये जगह एटा को कौन ब्रैकेट रखी थे बहुत जगह पिला भूल कर दियंती एटा वर्क हबो ना वर्क हबो ध्यान दो वर्क हला वर्क जदी हबो माने एटा देखो अनरियल कंडीशन रे आइदर तुम गोटे जिंस पाइबो बहुत तमर बही रे भी भूल अछि तमर इनविटेशन टू 4 बही रे भी भूल अछि पिले तो आम आ किछि कर पारे वी कैंट हेल्प इट तम मु सूत्र कहि दोछि तमे जानो हला तो रियली नाले ईआर कंपैरेटिव डिग्री जोटा हम कहते कंपैरेटिव डिग्री देखो बोले मु तुमको कहि दोछि ये तुम लाइकली कंडीशन रहा मनकर एटा हेइथांता इफ आई रियली वर्क हार्ड आई गेट ए प्रमोशन मु मेन क्लोज को सेमती रखी बिले मु आ कौन प्रकार प्रहसन करनी सुन पुन आणुनी है मु केवल ये जिनसा को बताऊँ हाउ कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए लाइकली कंडीशन एंड एन अनलाइकली कंडीशन इफ यू गो प्रैक्टिसिंग देम यू विल लेटर नो देम practice makes a man perfect there is a proverb but my point is that perfect practice makes one perfect so your practice जहाँ भी करियो से परफेक्शन को आसिया दरकार तो देखा पिले इफ आई रियली वर्क हार्ड हेल्थ तुम कौन बुझिला बर्तमान रियली अच्छा रियली जेतले कहूचे आमे सत्य कहूचे तो डेफिनेटली सत्य हे नथियो कौन पाई डेरी होला रे साइकिल सार लेके गेला है सत्य सर माने पूरा पूरी मिछ राइट तो ये जो सत्य आम कहे तारी पछे गोटे विराट मिछ लुचिकी अच्छी तेणु ये भी इंग्लिश रे भी से पे अच्छा मुझे चेंज कर इफ आई वर्क हार्डर आई विल गेट ए प्रमोशन सून I will make a promotion soon. So you see, कौन दीटा हला पिले if I really एटे कौन हम worked hard जदि really हला माने unlikely है जो ये जो clue दोच पिले ये गोटे clue if you work harder ये भी तमरा इडियस जो हला so this is the difference I just want to say you that
any competitive, for any competitive examination, you will just have them. So now the fourth one comes, meaning there is the unfulfilled condition. This is the later part of the closed condition. What is this? Unfulfilled condition. This is also a supposition that did not happen in the past. You see, in unlikely condition, has not happened. Bartan suda jaha ghati nai. In unfulfilled condition, jaha ghati nathila. ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟି ନଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବୁଛେ ହେଲା ତ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल ଦଉଛି if the police had not shown me the way I would have been lost. हला पिले तो देखो पिले the police had not shown कौन है past perfect for past time. past perfect for past time. past perfect आज में आज पर्यंत पढ़ीचे the distant time को से सबोले रेफर करे. But here in conditional clauses past perfect is referred to the past time. Me the way I would have been lost. ये कौन है पिले ये होची तमरो बी वर्बटा अछि ना been lost हे गला एटा पैसिव रह गला would have should have could have might have plus b3 I would have been lost म तार अर्थ कोन पुलिस मते रास्ता देखे नथिले मु हजी जाई थांती राइट किंतु मु हजी नथिली मु घरे I could reach my home safely ये होची तार अर्थ हैला तो देखो पिले and try to understand and this is a very important communication part in our speech right even in the award functions you might have heard the actors come to the stage and say if the director had not helped me if the co-artist had not helped me I could not have got this cup देखो ये सब जिनसे को होची तो दे आर वेरी मच कम्युनिकेटिव ये सब सेंटेंस गुड़ा सब जानिया दरकार हैला तो एठी कोन हला पिले देखो ये होची टाइम कोन हला पिले यार टेंस होची पास्ट परफेक्ट हैला किंतु टाइम कोन यार टाइम होची सिंपल पास्ट टेंस होची पास्ट परफेक्ट तुमको मु एति जिंस बतयार थिला पिले my only another video I am going to do the next day and you will just have them after a day or two and in that chapter I will just narrate I'll just make you a table to see and I will narrate some 20 to 25 examples practically so that you will have also you will have to do some 50 to 60 questions I have given you in the PDF. You will do them and show me off. Okay. Thank you and have a good day.